Bachu, yesterday we have done some questions based on finding the integration by substitution. Today we will do some more questions of this exercise 7.2. This is the 22nd question of the exercise. Integrate sec square 7 minus 4x. So what you have to do, you will put 7 minus 4x equal to t. Then differentiate it both sides. You will get c. इसका डिफ्रेंशिएशन 0 हो गया, कांस्टेंट है. x का डिफ्रेंशिएशन 1 और -4. So it is -4 equal dt by dx. So it becomes -4 dx equal dt. Now this integration becomes dx is equal to dt by -4. So it becomes -1 by 4 dt, and this becomes sec square t. Now the integration of sec square t is 10t. So it becomes -1 by 4 10t plus c. Now resubstitute the value of t, that is 7 minus 4x. You get the integral of the given function. Next question is integrate 2 cos x minus 3 sin x upon 6 cos x plus 4 sin x. You see here, from the denominator we can take 2 common, and after taking 2 common it becomes 3 cos x plus 2 sin x. Now see here, if you take this as t, then its differentiation is minus 3 sin x plus 2 cos x equal dt by dx. क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो dx इधर आ गया, and this is what? This is our numerator. So we can write this integral as this becomes dt. So it is dt, and in denominator 2 have been taken common, and this is t. So you get 2t. Now 1 upon 2 is constant, it can be taken outside, and integral of 1 by t is log mod t. Then resubstitute the value of t, that is 3 cos x plus 2 sin x. Next is integral 1 by cos square x into 1 minus 10x whole square. तो यहाँ आप देखते हैं कि अगर हम इस डिनोमिनेटर को कुछ मानेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? माइनस सेक स्क्वायर एक्स. तो ये जो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स है, इसको हम सेक स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं. सो इसको लिखेंगे हम सेक स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय 1 माइनस 10x होल स्क्वायर. अब इस 1 माइनस 10x को t माना, देन इसका डिफरेंशिएशन हो गया माइनस सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इज डी टी. देन दिस इंटीग्रेशन बिकम्स सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स हमारा माइनस डी टी हो गया, और डिनोमिनेटर में आ गया टी स्क्वायर. टी स्क्वायर मीन्स टी टू द पावर -2, और टी की पावर -2 का इंटीग्रेशन क्या होगा? टी की पावर -1 डिवाइडेड बाय -1. सो -1 और -1 मिलकर तो +1 हो गया, और टी की पावर -1 मीन्स 1 बाई टी प्लस सी. Then resubstitute the value of t, that is 1 minus 10x. Next question. Under root sin 2x cos 2x. यहाँ पर देखिए दोनों ही एक दूसरे के डिफरेंशिएट हैं, डेरिवेटिव हैं, लेकिन अगर हम cos 2x को कुछ सब्स्टिट्यूट करेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन होगा -2 sin 2x dx इक्वल टू t. तो उस केस में क्या होगा? हमारे पास जो इंटीग्रेंट में ये टर्म है ये रिप्लेस नहीं होगा, क्योंकि sin 2x हमारा अंडर रूट में आ रहा है, तो ये टर्म को हम रिप्लेस नहीं कर पाएंगे dt की टर्म्स में. इसलिए हम cos 2x को t नहीं मानेंगे, हम sin 2x को t मानेंगे, क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन dx के साथ आ जाएगा. तो sin 2x को t मानने के बाद
आपके पास आया 2 cos 2x एंड देन इक्वल टू dt बाई डी एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई होकर 2 cos 2x dx इक्वल टू dt आ गया। तो अब ये जो इंटीग्रेशन है ये हमारा cos 2x dx रिप्लेस हो गया dt बाई 2 से, एंड दिस इज रूट t, क्योंकि अगर आप इसको कुछ मानते तो ये रिप्लेस ना होता हमारा, क्योंकि ये अंडर रूट में था। अब t की पावर हाफ मीन्स का इंटीग्रेशन t की पावर 3/2 डिवाइडेड बाय 3/2, ये 2 कैंसिल हो गया, सो यू गेट 1/3 एंड t को रीसब्स्टिट्यूट करेंगे, दैट इज sin 2x टू द पावर 3/2 प्लस c। नेक्स्ट क्वेश्चन, cot x log sin x। तो यहाँ हम log sin x को कुछ एज्यूम करें, log sin x को t माना, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, log का डिफरेंशिएशन होता है 1/x होता है, जैसे log x का डिफरेंशिएशन 1/x, तो 1/sin x हो गया, यहाँ x के प्लेस पर आपके पास sin x है। लेकिन ये केवल क्योंकि x नहीं है, इट इज़ अ फंक्शन ऑफ x, तो चेन रूल लगाएंगे, इसलिए मल्टीप्लिकेशन बाय डिफरेंशिएशन ऑफ sin x दैट इज cos x into dx equal to dt. So it becomes cot x. So cot x dx equal dt. So our integration cot x log sin x dx becomes, ये cot x और dx मिलकर dt बन गया, and this becomes log, this becomes t. So you get integral t dt, and integration of t is t square by 2 plus c, and then substitute the value of t, that is log sin x. Next question, integration 1/1 plus cot x dx. What will do here, we will first convert this cot x in terms of cos and sin. So cos x by sin x, LCM लिया, sin x plus cos x into sin x dx. अब अगर हम इसको कुछ मानते हैं तो इसका डेरिवेटिव ऊपर एग्जिस्ट नहीं कर रहा है अभी, तो ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यहाँ हम क्या करें, इसे 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें न्यूमरेटर को, देन यू गेट हेयर 2 sin x, देन 2 sin x कैन बी रिटन एज sin x प्लस cos x प्लस sin x माइनस cos x। तो ये माइनस cos x कट के 2 sin x ही आ रहा है, इसका मतलब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। ऐसा हमने इसलिए कराया क्योंकि एक तो टर्म हमारी डिनोमिनेटर के इक्वल आ जाएगी, तो डिवाइड करके वो 1 बन जाएगा, दूसरी जो टर्म आएगी दैट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर। सो नाउ सेपरेट द टर्म्स, जब सेपरेट करेंगे ये 1 हो गया, और यहाँ ये अलग सेपरेट हो गया, हाफ इंटीग्रल sin x माइनस cos x डिवाइडेड बाई sin x प्लस cos x। अब 1 का इंटीग्रेशन x होता है, यहाँ पर sin x प्लस cos x को कुछ एज्यूम कर लीजिए t, तो इसका डिफरेंशिएशन हो गया cos x माइनस sin x एंड dx इक्वल टू dt। सो आवर इंटीग्रल, सेकेंड इंटीग्रल बिकम्स, न्यूमरेटर हो गया हमारा माइनस dt, माइनस कॉमन लेंगे तो न्यूमरेटर के इक्वल आ जाएगा, और डिनोमिनेटर में t है, सो इट बिकम्स x बाई 2 माइनस हाफ log mod t 1/t का इंटीग्रेशन प्लस c, then resubstitute the value of t, that is sin x plus cos x, and that's all for today. Now you can complete the questions up to question number 32. Thank you.